Everyone, good afternoon, ladies and gentlemen, and on behalf of President Awa, Southwestern Command, and the entire fraternity at the Southwestern Command, which has put together this wonderful, wonderful arena of learning and enrichment, I welcome you all to this particular. This is a personal favorite. When I saw the entire Abhivyakti series of things that had to be attended, this was one of them, and I'm so glad to be here, part of it. And I'll let some ladies settle, ma'am. Just a minute. Yeah. Ladies, you can treat it like a closed amphitheater, so you could just settle down on the carpeted steps also. There are some chairs here if... I did meet a number of people at lunch who were saying that they would have liked to be part of this session, and hence we are taking 5 more minutes to ensure that the like-minded people who have wanted to attend the influencer session would be here. All right. So my name is Geetika Lidder, like I just told you, and it gives me pleasure and privilege to introduce you to the host of today's talk, Mrs. Sapna Agarwal. She and me, we go back, I think, more than 20 years ago, probably. That is the first time that we met. And from then, the kind of journey that she's had is something that each one of us has to take a step back and look and say, wow, this is all about trying to... Hanji, we can settle down here. We can settle down here. Thank you for settling quickly. May I begin? All right, so again, on behalf of President Awa, Southwestern Command, and the entire Southwestern Command fraternity who has put this thing together, has put this arena of enrichment and fun and learning for you, it's my privilege as Geetika Lidder to welcome you to this show today. One of my favorites in the Abhivyakti list of series to do, and it gives me pleasure to introduce you to Mrs. Sapna Agarwal, who will take you through the next 1.5 hours of her journey. And there is so much of inspiration, motivation, and achievement. The story that she has to tell is something that each one of us can take a step back and probably look at and say, wow, if she can probably 1/10 of it, 100th of it, 1/50th of it, depending on the kind of effort that we can put in, probably we can achieve something and have our own stories to tell. Because life is all about a story. And each one of us has a story to tell, and each one of us is a hero of their own stories. So Sapna Agarwal. Dr. Sapna Agarwal is an astute academician. I don't even need to read to say this, because if you if you Google her name and you read her LinkedIn profile, everything is out there for you to know. She's an academician, she's dynamic, she's socially active, she's got a qualitative experience of more than 22 years at higher echelons for knowledge management, children education, training and development, child psychology science, and its spiritual understanding. Armed Forces background that she has, she is married to a man in the olive greens with a core competency in leadership skills, which she will tell you about, and high values. She's able to conceptualize and set up schools, right dissemination of education and quality, can position, and she can help all the stakeholders at school. It's not just about being the administrators, it's at all levels that she can extend herself to support a school. She believes that education reforms and innovative methodology can create wonders, and she will tell you exactly that is where I Big Wonder comes from. She has conducted training sessions and conference talks with school leaders, directors, chairpersons of schools, more than 4,500 in numbers. She has conducted talk sessions. This is only just one of the things that she will do. There's so much out there about her with children and with all
And she has overall connected with more than 30,000 children up till now. And I feel if we can connect with children, we are connecting with the future of our country. We are connecting with the change makers of our future. So the fact that she has a hold over them, the fact that she has so many YouTube videos, and if you just see the kind of videos that she's talking about, she is talking about the NEP, about so many things. She's demystifying all the things that you would want to know all under one roof, just by her own self, the natural talk that she does. So she's going to take you through the next 1.5 hours. She is a powerful motivator, having won the Zone and National Awards of Most Outstanding Speaker in Junior Chamber International India. She uses innovative training techniques and NLP to unlock the ideas and invoking participants' own ability to solve their own problems, which relate to real life situations which we all undergo. So without standing between you and Mrs. Sapna Agarwal, I will come in again at the time that we will have questions and moderate it for you. So it is my privilege to take you to Mrs. Sapna Agarwal. Ma'am, all yours. Thank you. Thank you, Gitika. And I mean, one of the best things which could have happened to me, I mean, meeting Gitika after 20 years, and she's a very brave woman. We'll talk about her a little later, because she's already introduced me. And is it okay if I be bilingual? हिंदी सबको आती है? अंग्रेजी सबको आती है? Bilingual तभी होगा. Right, that is very important. अच्छा, देखिए सबसे पहले मुझे आप सबको देखकर ना इतना अच्छा लग रहा है. Not that कि आप एक वक्ता को सुनने आए हो तो श्रोता को देखकर वक्ता को वैसे ही अच्छा लग जाता है. ना, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लगभग मेरे जैसे हम सफ़र लोग, कुछ उम्र में बड़े, कुछ उम्र में छोटे, सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं. इसका मतलब, अच्छा, बस एक छोटा सा निवेदन है, ये एक ही सेशन होगा जहां पर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मोबाइल मत यूज करिए. मैं आपको बोलूंगी आप मोबाइल जी भर के यूज करिए. बस क्या है कि उसको थोड़ा सा ट्रेन कर लीजिए, उसको साइलेंट कर लीजिए. ट्रेनिंग उसको बस इतनी सी देनी है कि वो साइलेंट रहे एंड जी भर के यूज करिए. किसी का व्हाट्सएप आता है, जवाब दे दीजिए. उसको क्या पता आप यहां बैठे हैं, राइट? किसी को फोन आता है, बोल दीजिए, 10 मिनट बाद बात करेंगे. दैट इज इट, बस. So there is no problem at all, there is nothing. The only thing is just a request कि बस आप उसको silent रख लें. तो देखिए आज हम जो बात करेंगे, आपको जो दिखाई देता है इसकी पूरी कहानी बताऊंगी आपको. आई बिग वंडर को मुझे मालूम है कि जब मैं YouTube की बात कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग चेक भी कर रहे होंगे. हम में से, मेरी जर्नी, ये चैनल तो बहुत पुराना है, मेरी जर्नी तो शुरू हुई है 2021 जनवरी में. शायद मुझे मालूम भी नहीं था. फिर क्या हुआ और लोगों को क्यों पसंद आने लगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी. क्या मुझे इंटिमिडेशन हुआ देखकर जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं? डर लगा, करें कि नहीं करें? और डर लगा तो फिर क्या किया? दूसरा, क्या जब लोग, अच्छा एक सवाल और, लोग कहते हैं कि ना सोशल मीडिया पर आने से ना लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, राइट? ये पक्का है कि लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं. मुझे यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग प्लीज बताइएगा, कोई अगर ऐसे हों जिनको नाम नहीं कमाना है, जिनको पैसा नहीं कमाना है, प्लीज हैंड रेज कीजिए. कोई एक जना तो ऐसा होगा जिसको नाम से क्या, नाम में क्या रखा है, और पैसा तो हाथ का मैल है, आता है जाता है. सबको पैसा कमाना है, एवरीबडी वांट्स टू अर्न. मुझे लगा अग्रवाल, मैं सरने में मेरे लगा हुआ है बनिया, पैसा तो मुझे ही कमाना है. राइट? पर यहाँ तो सभी को पैसा कमाना है. वेरी इंटरेस्टिंग. और नाम भी सभी को चाहिए, हाँ या ना? नाम भी सभी को चाहिए. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई शॉर्टकट टू सक्सेस है, ऐसा नहीं है. मैं बिल्कुल ऐसा कहकर, शी इज रेजिंग हैंड. माँ लक्ष्मी, आप जहां भी कहीं हो, इस भक्त को जो आप देने वाले हो उसको यहां ट्रांसफर कर दें. How nice. She didn't say no, पर उन्होंने सुन लिया. Right. Thank you so much. पर ये बात उन्होंने सही कही कि जहाँ सरस्वती विराजती हैं, लक्ष्मी जी आ जाती हैं. The only thing about Lakshmi ji is that money has a lot of energy. And ये energy टिकती नहीं है किसी एक जगह पर.
तो अगर एनर्जी बहुत चलायमान होती है, ऐसे आपने सुना होगा, अगर इस एनर्जी को सही जगह नहीं लगाया तो ये चली जाती, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखने के लिए भी कुछ गुण होने चाहिए। लक्ष्मी जी को संभालना भी आसान नहीं है। तो बात तो हम सोशल मीडिया की कर रहे हैं, पर लक्ष्मी जी बहुत इन्वॉल्व है और बहुत। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज अगर ये बात वो नहीं कहती तो मैं लक्ष्मी जी को आमंत्रित ही नहीं करती यहाँ पर, हाँ कि ना। So anything, so we are going to make this session very interactive. It is not about me, it is not about one social media, it's not about social media influencing, it's about power of social media which each one of us has to experience, get into. India is on just the verge of experiencing it. और अगले 10 साल के अंदर हमारे जैसे कुछ अच्छे लोग इसके अंदर कूद पड़ते हैं, you can revolutionize this सोशल मीडिया। कैसे कैसे वो अभी बहुत सारी चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं ना आपके साथ कुछ बातचीत करने के लिए आई हूँ। तो देखिए, आज हम जो इन तीन मुद्दों पे बात करेंगे, इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, सोशल मीडिया, इसका इम्पैक्ट एंड हाउ इट कैन चेंज द वर्ल्ड। पर जब मैं ये बात कहती हूँ ना, या मैं बात जब ये सेंटेंस लिखती हूँ, बोले खुद को तो बदल लो, दुनिया क्या बदलने चले हो। खुद को तो बदल लो, दुनिया क्या बदलने चले हो, है ना। मतलब हम दूसरे को सही करते रहते हैं, हम दूसरे को सही बताते रहते हैं, खुद को कभी सही करके देखा ही नहीं, हाँ या ना। सो दैट इज व्हाट ये डिसिप्लिन आपको देता है सोशल मीडिया। हमें हर वक्त हर समय बस खुद को ही ठीक करना पड़ता है, और जब हम सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हो जाएंगे ना, तो सोशल मीडिया दुनिया को बदल देगा। ये था तो बहुत सालों से था। हम जब वेदों उपनिषदों की बात करते हैं ना, तो वेद और उपनिषद में हम सब ने सुना है, महाभारत के अंदर आंखों पर पट्टी लगाकर उन्होंने महाभारत में क्या हो रहा था वो बताया था। तो इंटरनेट ही रहा होगा, हाँ या ना। इंटरनेट ही रहा होगा, किसी तरह से तो कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती होगी, बस उसका नाम कुछ और दे दिया गया था, शब्दावली कुछ और थी उसके अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारे अस्त्र, हम सेना से हैं, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, लार्जेस्ट एनजीओ रजिस्टर्ड जो है, और जिस प्रकार से हमारे अब तो खैर विमेन भी ऑफिसर्स बन रही हैं, पर जिस प्रकार से सेल्फलेस सर्विस सभी फौजी दे रहे हैं, उसी प्रकार से आवा में सेल्फलेस सर्विस लेडीज़ दे रही हैं। और ये एक मंच जिसको जो मिलता है, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही हूँ यहाँ पर, और आप सब इसके साक्षी बन रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले इससे बड़ी कोई बात नहीं है, तो आप सबको सादर प्रणाम। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, इसके लिए सादर प्रणाम, और खुद के लिए मौजूद हैं, मेरा उत्साह बढ़ाने आए हैं। नाउ व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज, 2-3 सवाल आपसे पूछती हूँ। सोशल मीडिया पे आप अगर मोबाइल खोलकर देखेंगे अपने खाली समय में, तो आप क्या सर्फ करेंगे? चलिए, क्या सर्च करेंगे खाली समय में? गलत सही का कोई फर्क ही नहीं है, तो उत्तर है what has happened around us, something informative. Okay, great answers. जो काम का होगा, सही। शॉपिंग, करेक्ट। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ही आसान हो गई है, जाना ही नहीं पड़ता और सामान आ जाता है। इनफैक्ट हम यहाँ पर, मैं जब अंदर स्टॉल्स पे घूम रही थी ना, तो मैंने सोचा कि लेकर ना जाना पड़े। मैंने काफ़ी लोग से पूछा ऑनलाइन मिलेगा, तो ये इतना अच्छा हो गया कि ऑनलाइन मिलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा नहीं, लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेकर ही जाऊँगी। ये भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो 2-3 बहुत अच्छी वाली बातें हो गई। और बताइए क्या सर्च करते हैं, या आपको क्या लगता है कि दुनिया में सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? एंटरटेनमेंट। सिद्धार्थ, यस, स्पोर्ट्स, पॉर्न। अच्छा हाँ, ओ यस, वी आर ऑल एडल्ट्स, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। पॉर्न बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है। ही इज राइट एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स राइट। ओके, या फाइनेंस का तो मार्केट इस वक्त आप ये देखिए कि इतना आसान। मैं अभी कुछ सारे इन्फ्लुएंसर्स से मिलकर आई, वो इन्फ्लुएंसर्स को मैं अपने चैनल पर भी लाने ही वाली हूँ, एक एक करके आप सबके सामने। तो मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से मिली, 99% फाइनेंस के मार्केट से थे, बहुत बड़े नाम। और मेरा उनसे ये ही सवाल था कि फाइनेंस ही सबसे ज्यादा क्यों बिकता है? राइट, बिकना तो और भी बहुत कुछ चाहिए। तो यहाँ पर सर ने एक जैसे नाम बताया, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सर जी।
पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा, करेक्ट, ओके, सोशल मीडिया, डेटिंग साइट्स, बीमारियों का इलाज। यहाँ पर मैं सरप्राइज्ड हूँ, महिलाएं तो खाना नहीं बनाना चाहती, मैं मानती हूँ, पर पुरुष भी हैं तो वो तो खाना बनाते हैं, खाते भी हैं फिर, राइट। सो एंड द स्टेप्स आर देयर, ये पूरा सब यहाँ पर है। सो कुकिंग के बारे में किसी ने नहीं बोला कि कुकिंग, लोग उसको देखकर आप बनाओ नहीं बनाओ वो अलग बात है, पर देखते जरूर हो। ब्यूटी टिप्स बिकती है, नॉलेज अबाउट प्लांट्स, हाँ, मतलब पौधों के बारे में बहुत लोग बातचीत करने लगे। हाय अर्चना मैम, आई जस्ट सॉ यू, राइट। सो पौधों के बारे में बातचीत बहुत सारे लोग करने लगे हैं। लाइफस्टाइल, मोटिवेशनल, सीरियसली मोटिवेशनल वीडियोस, ओके, इंटीरियर, तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली कि यहाँ मैं काम कर सकती हूँ, अगर ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पर डालूं तो ये सारी देखी जाएंगी, करेक्ट है। और आप सबको भी अंदाजा हो गया कि ये सारी चीजें अगर देखी जाएंगी तो चैनल पर देखा जाएगा। पर एक चीज जो आप सब लोग भूल गए, शायद लोग बहुत सारा सोशल मीडिया पर इसलिए जाते हैं, आवाज बढ़े ना तो माइक लगा दो, माइक लगा दो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? कॉमेडी। ठीक है, हम सभी हंस लेंगे, उसको क्यों हंसाया जाए, क्यों देखा जाए। सो बेसिकली कोई बात नहीं, whenever there is technology, the technology can always be at a glitch, but the human being can never be at a glitch. ये भी सोशल मीडिया सिखाता है, ये मैंने सीखा है खुद, मैंने बिल्कुल सीखा है। और आप ये देखिए, लोग एंटरटेनमेंट के लिए, ईज आउट होने के लिए जाते हैं, और ईज आउट होने के लिए क्या करते हैं, हमको कोई हंसा दे तो हंसाना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है, रुलाना तो बहुत ही आसान है, राइट। भगवान ना करे किसी को रोना पड़े, इमोशनल होना पड़े, पर होता है, जिंदगी का हिस्सा है, अहम हिस्सा है, पर हंसाना मुश्किल है। इसलिए आपने देखा होगा एक समय पर हंसी बहुत बिकी, हाँ कि ना, और जब वो हंसी बिकने लगी तो हंसी में नॉनसेंस भी आ गई, हाँ कि ना। फिर एक समय आया कि लोग हंसी को चुनने लगे, हाँ कि ना, एंड नाउ दे डोंट गो टू सी ऑल हंसी, हाँ या ना। एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ अस, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम में से किसी ने भी स्टैंड अप कॉमेडी या ऐसा शब्द नहीं बोला। मैं भी आप में से ही एक हूं, और मैंने भी नहीं बोला। टीवी में कभी, अब तो टीवी नहीं देखते, अब तो यूट्यूब ही ज्यादा देखा जाता है स्मार्ट टीवीज पर, जमाना बदल गया है, बहुत कम चैनल्स ऐसे जाकर देखे। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सुविधा है, वो क्या है वो आगे आपसे बात करूंगी। समय कम, बातें ज्यादा, बताना भी बहुत कुछ है, राइट। अच्छा हाँ, थैंक यू, आई फॉरगॉट द माइक, तो मैं इसको जब करना होगा तब मैं कर लूंगी, तो समय कम था। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने प्लेटफॉर्म पर आकर, क्या उन्होंने कहा कि मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। कोई राइट टाइम नहीं है। आपको आज लगता है ना, आपको आज लगता है, मेरे सेशन से सुनने जाने के बाद 10 दिन से मन में चल रहा था, 1 साल से मन में उथल पुथल चल रहे थे, 3 वीडियो मोबाइल में बनाकर रखे थे, डालें कि नहीं डालें, आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने एज अ नोविस किया, मेरी उम्र में भी नोविस किया। इनफैक्ट मेरे बेटे ने, मेरा बड़ा बेटा 25 साल का हो गया है, जब उसने मुझे कहा तो मेरा पहला रिएक्शन था, ना, यूट्यूब तो टाइम वेस्ट करने वालों के लिए है। आज मैं कमा रही हूं, ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नाउ जब उसने मुझे बोला था कि मम्मा मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग, कोविड का समय है, आप कॉन्फ्रेंसेस करने जाते थे, अब आप नहीं जा पा रहे हो, you want to tell people, you want to help people, why don't you start putting a video? मैंने बोला रिसोर्सेज नहीं होंगे ना मेरे पास, बहुत खर्चा लगेगा।
मतलब राइट, बहुत खर्चा लगेगा, और मैं क्या बनाऊंगी, 1 वीडियो 2 वीडियो, मैम को मालूम है स्कूल में जाकर हम क्या वर्कशॉप करेंगे, 4-5 चीज़ें होती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट बता दिया. And then he said, Mom, if you are not convinced about the work which you are doing, why are you doing it for so many years? ये एक 25 साल का बच्चा मुझे कहता है कि अगर आप कन्विंस्ड ही नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए तो आप कर ही क्यों रहे थे इतने साल से? क्या एक मतलब एक थोड़ी सी सेकंड इनकम आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, बस इसी के लिए आप कर रहे थे ना, इससे ज़्यादा तो यू वर नाइस. एंड दैट वाज मतलब उसने ट्रिगर, वो सेंटेंस ऐसा था कि बाप रे, am I solving any problem? Am I able to create any impact? Am I helping somebody? And the moment I realized कि मेरे टीचर्स को इतना बड़ा समाज जो शिक्षक के कंधे पर खड़ा है, और शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान मेरी आर्मी वाइफ्स देती हैं. हर आर्मी वाइफ जब शादी होकर आती है उसके पास पहला ऑप्शन होता है सरलता से कि वो कहीं जाकर शिक्षा देने लगे. यस और नो? गीतिका विल एग्री टू इट. आई मीन मेनी ऑफ अस विल एग्री टू इट. मैंने बोला इतना बड़ा समाज और उसको हेल्प करने के लिए मेरे पास, जबकि मैं इतने सालों से यही कर रही हूँ, मैं कहती हूँ आई एम अ प्रोफेशनल स्पीकर, और मैं कहती हूँ कि चंद एक टॉपिक्स हैं और वहीं पर समाप्त हो जाती है बात, तो एम आई सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम? नो, आई एम नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. देन व्हाट एम आई डूइंग? It was just to earn a few bucks, that's it, that's the end of it. No, that was not end of it. And that is where I started thinking on the topics, and that is where one after the other, now there is an endless, in fact अब ये confusion हो गया करीब 300 वीडियो डालने के बाद कि मेरे पास 10 टॉपिक्स रेडी हैं, मैं कौन सा पहले डालूं. Your mind starts, yeah, thank you. Because your mind starts becoming more productive. आप एक राइट डायरेक्शन में सोचते हो. ठीक है, यूट्यूब पर आने के लिए राइट टाइम कौन सा है ये तो आपको तय करना है. आपको जब लगे, आज से 1 साल बाद लगे, बिल्कुल. आपको लगता है करना ही नहीं है, बिल्कुल राइट. आपको लगता है कि आज ही करना है, बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली योर चॉइस. बट यहां पर आपको ना ये आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट कैन यू इम्पैक्ट. मैं जब इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ ना, हम लोग सोशल काम करते हैं, चैरिटी करते हैं. हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने का कोई पर्पस नहीं है, हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि जब आप चैरिटी करते हो तो फोटो क्यों खिंचाते हो. ये सब ने कहा है अपने अपने मन में. जब लोग चैरिटी करके आते हैं और लोग फोटो खिंचाते हैं तो भैया क्यों करके आए थे चैरिटी? फोटो ही खिंचानी थी तो बेकार हो गया. वहाँ पर भी लोग इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं. फिर इम्पैक्ट हम करते हैं कि हमने कुछ किसी को पढ़ा दिया, किसी को पढ़ने का सुअवसर दे दिया, तो हमने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया. यो सेम वही चीज आपको आपको किसी गरीब को पढ़ाना है ना, पढ़ाना शुरू कर दीजिए. आप इंस्टाग्राम पे पढ़ा दीजिए, आप यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए, आप और भी बहुत सारे ऐप हैं, मैं बताऊंगी आपको मैं कहाँ कहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त, आप मुझे कहाँ कहाँ पर ढूंढ सकते हैं. आप वहाँ से वो काम शुरू कर दीजिए. सबसे बड़ी बात, ये सब निःशुल्क है. जो करना चाहता है उसके लिए, जो लाभ उठाना चाहता है उसके लिए. यस और नो? आपका क्या लग रहा है? समय के साथ साथ आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, जो चाहे ये 3 वर्ड चाहे मस्तिष्क की लाइब्रेरी में लिख लें, चाहे नोट्स में खोलकर मोबाइल में लिख लें, कोई भी यूट्यूब बिना डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट के नहीं चलता. सेटिस्फैक्शन बाद में आएगा, वील कम टू इट, वो मैस्लॉज में ऊपर आएंगे अभी. व्हाट हैपेंस इज, एक माँ भी जब अपने बच्चे को पढ़ाती है ना तो हम डेडिकेट नहीं हो पाते. हम उसको पढ़ाते हैं आधा घंटा पढ़ाने के बाद सोचते हैं बेटा अब अपने आप पढ़ लो ना. पढ़ा तो दिया एक बार, अब तुम्हारे पास बैठे ही रहे. एंड यू नो मतलब हम डेडिकेशन वहां पर भी नहीं दे पाते. सो नाउ जस्ट इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन दिस थिंग रिक्वायर्स. मैं पूरी जर्नी से आपको लेके जाऊंगी, डराऊंगी नहीं पर सच्चाई है बताऊंगी. बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, वो सिर्फ ऐसे बताएंगे कि आप ऐसे डालो फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर वो हो जाता है. मैं बिल्कुल निःशुल्क, जो मैंने आज तक कोई खर्चा नहीं किया, वो मैं सारी चीजें बताऊंगी. दैट हाउ डिड इट स्टार्ट, राइट? सो दैट्स वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट इज, आर यू मिसिंग समथिंग इफ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया? हाँ या ना? नहीं, दोनों ही करेक्ट है. येस, यू आर मिसिंग इफ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया. बिकॉज जैसे अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं अगर यूट्यूब पर ना भी कर रही हूँ, लिंक्डइन पर ना भी कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पर ना भी कर रही हूँ, इंस्टाग्राम तो खैर अभी स्टार्ट किया, मौज करके एक वो ऐप है, लोगों ने कहा बहुत ही घटिया है. मैंने बोला मेरे को तो जो आता है मैं वही करूँगी.
उस पर भी 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, जबकि उस पर तो बहुत कचरा गार्बेज बिकता है। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी ज्ञान देने की, मेरे को जो आता है मैं वही करूंगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे को कचरा नहीं डालना, मैं कोशिश करके भी नहीं डाल सकती, राइट। सो इट इज अप टू, इट इज योर कमिटमेंट, आपके अंदर क्या कमिटमेंट है, दैट इज इट। एंड राइट, लिंक्डइन पे मुझे लगा बहुत सो इफ आई हैव टू डिग इन्फॉर्मेशन, इफ आई हैव टू बी अपडेटेड, ऑल व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गैदर इट फ्रॉम द सोशल मीडिया। कंटेंट की कमी दुनिया में नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि ये मेरा कंटेंट है, वो जमाने गए, ये मैंने बनाया है, दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉरगेट दोस डेज। आपके सोचने से पहले कंटेंट बन रहा है, आपने मन में कुछ सोचा, वो कंटेंट बन चुका है, राइट। सो देयर इज नो, मतलब कोई डरने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा कंटेंट कोई ले लेगा, या मैंने अगर ये डाल दिया तो फिर ये मेरे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। सो कंटेंट बहुत ज्यादा स्पीड से बन रहा है, आप उसको किस स्पीड से पहुंचा पाते हैं लोगों के पास, वही है सोशल मीडिया, करेक्ट। आप डिसएग्री करिएगा मुझसे कहीं कहीं, जब आप डिसएग्री करेंगे तभी तो डिस्कशन होगा। अगर आप अग्री कर लेंगे तो मैं डिस्कशन ही नहीं कर पाऊंगी, तो मैं चाहूंगी कि आप कहीं कहीं डिसएग्री करें, हम उस चीज को आगे ले लेंगे। किसी का फोन पीछे लगा हुआ है, वो देख लीजिए। ओके, देन सो आप तभी, अगर आप सोशल मीडिया पे एज अ कंट्रीब्यूटर नहीं हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ अगला सवाल ये आता है कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या कंटेंट कंज्यूम भी करती हूँ। हमको कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा ना। यस, पुरानी कहावत है, यू डोंट री इन्वेंट द व्हील्स, करेक्ट है। तो अगर मैं 10 मिनट का एक वीडियो डालती हूं तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कम से कम 3 दिन की रिसर्च, एक छोटी सी टीम है अब, 3 दिन का रिसर्च, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, डालने के अलावा कंटेंट कंज्यूम करना भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस रिसर्च का। तो मैं जाकर रेलेवेंट चीजें देखती हूं जो लोग डालते हैं मेरे जो मुझे अच्छा लगता है, राइट। कई बार जिसको हेट करते हैं मैं अवॉइड करती हूँ उसको देखना, कभी कभार शायद 1000 में 10,000 में एक बार देखा होगा, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज लोगों को इंपैक्ट कर रही है, क्या चीज वो बोल रहे हैं। आपने एक चीज और देखी होगी कि सोशल मीडिया पे हर एक कोई पब्लिक स्पीकर नहीं है, तो वो जमाना भी गया दैट यू हैव टू बी अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर टू बी एबल टू इंप्रेस पीपल, वो जमाना भी गया। तो कंटेंट का जमाना गया, दूसरा जमाना, यस आई जस्ट यस बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आस्क अ क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन। तो वो हालांकि टू बी अ गुड कम्युनिकेटर इज डेफिनेटली एन एडेड टूल इन योरसेल्फ। अगर आप बोल पाते हो पब्लिक में, अगर आप सही ढंग से कुछ कह पाते हो, तो वो एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग टूल है। उसके आगे बहुत फायदे होंगे, राइट, इन फ्यूचर उसके बहुत फायदे होंगे आपके जर्नी के स्टार्ट होने के साथ साथ। अब पूछ लो सवाल। श्योर। मे बी एट योर एज, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कुछ नहीं करने वाले ऐसे, मैं भी नहीं करती। बेटा हमने इतना ज्ञान अपने बच्चों को दे दिया, इतना ज्ञान दूसरों के बच्चों को दे दिया, इतना ज्ञान अपने हस्बैंड को दे दिया, तो अब हमें कंटेंट कहीं से चुराना पड़ेगा, फिर तो धिक्कार है महिला होने पर। राइट, फिर तो धिक्कार है बिल्कुल, क्योंकि हम तो ज्ञान, आप मुझे कोई चीज बताओ, देखो मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन देती हूँ। आप बताओ कि इस जहाज में छेक हो गया है, मैं आपको बताऊंगी आटा गोलो, आटा लगा दो, मैं बताऊंगी नहीं, मतलब मैं कह रही हूं। तो ये आपकी एज में करेंगे बेटा, यू आर राइट। सो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एज ग्रुप्स, यस पीपल डू दिस। वो दूसरे का कुछ कंटेंट देखते हैं, कुछ अच्छा लगा वहां से लेते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वो वीडियोस भी बना रहे हैं, उनके यूट्यूब्स भी चल रहे हैं, वो दूसरे के वीडियोस को लेकर मीम्स के साथ डालते हैं, वो भी चल रहा है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर मैं आप सब लोगों से वो बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर अधिकतर लोग जो बैठे हुए हैं 30+ तो हैं ही, है ना, 30+ तो हैं ही। तो जो 30+ लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्ञान पेल दिया है।
राइट, सरल भाषा में अगर हम बोलें तो अब उनको दिक्कत नहीं है कंटेंट बनाने की। अब उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनमें इतना पेशेंस नहीं रह पाता कि वो बैठकर किताबें पढ़ें। तो मेरे YouTube चैनल पे क्या है, इस प्रश्न पे मैं आती हूँ अभी। मेरे YouTube चैनल पे क्या है कि मुझे बहुत सरप्राइज है और मैं बहुत मतलब हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। इसका मतलब ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ये चाहते थे। मैं कोई सब्जेक्ट नहीं बेचती, सब्जेक्ट की पढ़ाई इंटरनेट पे बिकती है। मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करती हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा कैसे क्या करें डू इट योरसेल्फ टाइप भी मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैंने बातचीत करनी शुरू करी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इतना गंभीर विषय, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या होगा और कैसे होगा। बोले शिक्षा तो सबसे पहले बंद करी थी मैडम, जब कोविड हुआ था तो शिक्षा ही सबसे पहले बंद हुई थी और शिक्षा ही सबसे आखिरी में खुली थी। दारू के ठेके सबसे पहले खुले थे। करेक्ट है? तो मैडम आप नई शिक्षा नीति में क्या बेच रहे हो सोशल मीडिया पर? कौन लोग सुनेंगे आपको? पर मैंने कहा मुझे जो आता है मैं तो वही करूंगी। मेरा तो एक ही सेंटेंस वो था। फिर मैंने बताना शुरू करा, प्लीज सर प्लीज आप आए सर, यू कैन एनीवेयर यू कैन सिट। ओके, फिर मुझे लगा प्रॉब्लम क्या सॉल्व, वो था ना इससे पहले एक स्लाइड, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे। मुझे लगा कि शिक्षक के पास पैसा नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट के पास होगा, है, मेरे जैसे प्रोफाइल पर लोग पहुंच जाते हैं, होगा, है। एक शिक्षक के पास शायद पैसा नहीं है जो हर बार 1000, 5000, 2000 ऐसे कुछ पैसा खर्च करके सेशंस अटेंड करना स्टार्ट करे, पर उसको सिखाना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आई कि मेरे देश का बच्चा इसी शिक्षक से पढ़ रहा है। अगर इस शिक्षक को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और हर बार केवल पेड प्लेटफॉर्म्स पर या वेबिनार्स में जाकर इसको अटेंड करना पड़ेगा तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ आज तक जो भी किया। एंड आई डेडिकेटेड, अगर आप जाएंगे, आई डेडिकेटेडली स्टार्टेड पुटिंग topic after topic, topic after topic, non-stop topic after topic, just to help my teachers and my students. क्योंकि थैंक यू मैम, क्योंकि अगर उस बच्चे को, मतलब आप ये सोचिए ना, आपका मेरा बच्चा ऐसे टीचर से पढ़ेगा जिसको जो अपडेटेड ही नहीं है ना, मतलब कैसे फिर कैसे काम चलेगा। हम बोलेंगे टीचर को तो अपडेटेड नहीं, वो वीडियो बना बना कर डालते हैं कि देश के राष्ट्रपति कौन है, उनको नहीं बोलना आता, फिर देश में कितने स्टेट से नहीं बोलना आता। भाई अपडेटेड किसने किया इसको? उसने तो बीएड की डिग्री लेने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया और शिक्षक जब भी कक्षा में आते थे वो कहते थे मैं लाइट हाउस, शिक्षा का किरण यहां से निकलती है। शिक्षक ने कभी कहा ही नहीं कि मैं टीचर, मतलब मुझे सीखना है, मैं तो लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो मुझे लगा कि मैं अगर लाइफ लॉन्ग लर्नर बना सकते हैं किसी को तो मेरे देश के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सेल्फिश थी, देश के बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा तो मेरा देश भी उज्जवल हो जाएगा। और शायद मेरे लाइफ साइकिल में, मेरे लाइफ टाइम के अंदर मैं ये देख पाऊंगी दैट इंडिया इज एक्चुअली चेंजिंग। खैर बहुत सारा काम हमारा देश की जो गवर्नमेंट है वो भी कर रही है। वो देश को देखते देखते उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, देश को देखते देखते उन्होंने टॉय के अंदर हम 67% वर्ल्ड लीडरशिप कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो टॉय कंपनीज ढूंढ लें, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, रिस्क आपका रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क आपका ही होता है, मैं सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ। तो टॉय कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा करते 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 इतनी सारी चीज़ें सीखने मिली। तो अब मैं आपसे जो बात करती हूँ, जो प्रश्न आपको इतनी देर से स्क्रीन पर दिख रहा है, काहे तो खोला था अगर इसके बारे में नहीं बोलना, इसी के बारे में बोलना है। हाउ मच मनी एंड व्हाट रिसोर्सेज डू यू नीड टू बिगिन विद? मोबाइल सबके पास है? हाँ या ना? वो गलत प्रश्न पूछ लिया, किसके पास मोबाइल नहीं है? प्लीज वो बताइए। एवरीबडी हैज अ मोबाइल, नो? ओके, राइट। इफ यू हैव अ मोबाइल, दैट इज योर रिसोर्स। डू यू हैव एन ईमेल? आपने ईमेल बनाई है? कोई ऐसे है जिन्होंने ईमेल नहीं बनाई है? ये इसका आंसर ना हो सकता है। ऐसे कोई है जिसका ईमेल ना हो? सबके पास ईमेल है। Why I'm asking about a email is because अगर आपके पास एक ईमेल होती है जीमेल पर खुली हुई, तो ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ होता है। आप उसको यूज कर, मतलब बना सकते हैं, आप उसको एस्टैब्लिश कर, आपको कोई मेहनत नहीं करनी उसके लिए। राइट, सो दैट्स एज सिंपल एज दैट। अब अगला सवाल आता है कि भाई हमने देखा है
धीरे, सब चीज़ धीरे धीरे होती है। एक दिन में ना किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए, ना होने चाहिए। मैं आगे बात करूंगी डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, तब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। और रिसोर्स क्या चाहिए? आपका वीडियो या तो आप खुद किसी चीज़ पर लटकाकर, बनाकर, खड़ा कर कर आप उसे बना लें, या उसके मोबाइल के दूसरी साइड, अगर आप महिला हैं तो एक अच्छा हस्बैंड मोबाइल के दूसरी साइड, या मोबाइल के साइड दूसरी तरफ आज्ञाकारी बालक और बालिका जो आपके ही अपने बच्चे होंगे, या अगर इनमें से कोई भी आपको हेल्प नहीं करता और आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सासू माँ को सिर पर चढ़ा दीजिए। सासू माँ आपका मोबाइल पकड़ेंगी और अब उसके बाद सबको बताइए, पता है मेरे वीडियो कैसे बनते हैं? क्योंकि मेरी सासू माँ दूसरी साइड होती है। जिंदगी भर उनको कैमरे के सामने आप नहीं लाने वाले हो, लेकिन यूज आप करोगे उनको। करेक्ट है? एंड यू विल हैव अ बेटर कॉर्डियल रिलेशनशिप विद मदर इन लॉ, बिकॉज यू विल टीच हर हाउ टू होल्ड द कैमरा, बिकॉज यू विल टीच हर कि ममा दूर खड़े होते हो तो फिर ये गड़बड़ होती है, एंड यू विल टीच हर कि ममा आप इतने बूढ़े नहीं हो कि कैमरा हिलाओगे, स्टेबल पकड़ो इस कैमरा को। और माँ स्टेबल पकड़ेगी कैमरा को। और मैं सासू माँ की बात कर रही हूँ, अपनी माँ की बिल्कुल मत करना, बिकॉज अपनी माँ आपको 10 मिनट बाद बोल देगी खुद बना। ये सासू माँ में ही दम है जो आपका वीडियो पकड़ के बनवाएगी। अपनी माँ ने तो कभी बचपन में नहीं, आधा घंटा 30 मिनट के बाद बोलती थी, बेटा तुम्हें 30 मिनट, आधा घंटा हो गया तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका बचपन आपकी माँ के साथ बीता है, जिन्होंने बार बार आपको कहा है तुम अपने आप पढ़ नहीं सकते हो। यस, please don't say like that. My mom is there in the, she's a star and she's definitely a great courage behind me. हम मजाक उसी के बारे में कर सकते हैं जो सबसे हमारे क्लोज होता है, हाँ या ना? That is very important. But you can definitely use your सासू माँ. Don't forget this tip. कोई मुझसे टिप बोलेगा तो मैं टिप में ये डेफिनेटली आपको बोलने वाली हूँ. Your old grandparents, your old mom-in-law, your old father-in-law, they are very, very good people because वो मानते हैं आपकी बात और उनको अच्छा लगता है कि उनका बच्चा कुछ कर रहा है, इसलिए वो आपकी बात मानते हैं. That is it. What else do you need? You need to study before you go on any platform. रिसोर्सेज में आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा कि वो कैसा प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या उसका एनालिटिक्स है. मतलब आप अगर महीने में एक बार डालते हैं 15, जो आप जो सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा. आप रोज डालेंगे वो रोज डिमांड करेगा. आप महीने में एक बार डालेंगे वो महीने में एक बार एनालिटिक्स डिमांड करेगी. ये एनालिटिक्स आपको सेट करनी है. मैं जैसे कोशिश करती हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 2 प्रॉपर वीडियोस और करीब 3 शॉर्ट्स डाल दूँ. मैं कोशिश करती हूँ. कभी कभी ट्रैवल कर रही होती हूँ, कॉन्फ्रेंस में जाना है, काम है जहाँ पर सारी चीज़ें आनी है, कोई दिक्कत नहीं है. एनालिटिक्स आपको बता देगा कि आपने नहीं डाला, क्योंकि एनालिटिक्स नीचे जाएगी तो वो आपको एकदम से देता, अरे हाँ भाई नहीं डाला. सो यू हैव टू बी रेडी, राइट? सो एंड यू हैव टू पुट इट. दैट इज व्हाट इज डिसिप्लिन, दैट इज व्हाट इज कमिटमेंट, दैट इज व्हाट इज डेडिकेशन. आप अपनी एनालिटिक्स सेट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है मैं महीने में एक बार डाल सकता हूँ या सकती हूँ, महीने में एक बार. मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि लोग दूसरों को देखकर कहते हैं कि और हमने नहीं डाला. ना ना, ऐसा कुछ नहीं है. शॉर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको बता दूं कि करीब मिड जनवरी से और फरवरी फर्स्ट वीक से शॉर्ट्स भी मोनेटाइज हो रहे हैं. तो जो आप शॉर्ट्स डालेंगे आपके चैनल के ऊपर, धीरे धीरे आपको बस उस पायदान पर पहुंचना है, करीब 1000 सब्सक्राइबर्स. और शुरुआत में हर चीज़ टफ होती है. जब हम पैदा हुए थे, क्या हम चलने लगे थे पैदा होते ही? बताइए ना, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर जो चलने? राइट, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, वो है ना हमारी क्लास 12 की इंग्लिश बुक में एक कहानी है ना. आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत सारे शिक्षक हैं, तो मैं इसलिए उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ. वो पैदा ही ऐसे हुए थे कि बहुत सारी उन्होंने बात सारी कर दी थी. तो हम पैदा होते ही चलने नहीं लगे थे. हमको पहले घुटने चले, फिर खड़े हुए, फिर किसी ने हाथ पकड़ा और फिर हम चलने लगे. राइट. तो अब आप मुझसे कहेंगे कि यूट्यूब पर ऐसा कैसे होगा, या मैं यूट्यूब की बात करती हूँ, इंस्टाग्राम पर यह ऐसा कैसा होगा. अच्छा, आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखिएगा, पहले आपको एक प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, पैरेलली आप बाकी चला कर रखिए. चिंता ना करें कि दूसरे पर आप ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कभी कभी डालते रहें, कोई दिक्कत नहीं है.
बिकॉज वंस यू आर स्ट्रॉन्ग, वंस यू फील डेडिकेटेड एट सम प्लेस, ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। और जब आप ये करते हैं ना, तो यूट्यूब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन करता रहता है। अब आप ये खोल दीजिए, अब आपका ये खुल गया है, राइट। जैसे अब शॉर्ट्स के लिए मेरे पास एक ऑप्शन मुझे यूट्यूब ने खोल दिया कि मेरे बने हुए वीडियोस में से मैं शॉर्ट्स बनाकर डाल सकती हूँ। तो अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, मेरे को उसी में से जितना मर्जी 10, 5, 10, 20, 25, 50, 55 सेकेंड तक का मैं शॉर्ट्स बनाकर निकाल कर डाल सकती हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब भी, जब वो देखता है प्लेटफॉर्म कि आप डेडिकेटेड हो, आप कमिटेड हो, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुअली ओपन करता है, राइट। आगे बढ़ती हूँ। तो रिसोर्सेज आपको बेसिकली शुरुआती तौर पर यही चाहिए। एक मोबाइल, कैमरा हो बहुत अच्छी बात है, ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैमरा से आप उसका SD कार्ड लेकर इंसर्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, हैवी होगा और यूट्यूब चढ़ने में भी टाइम लगेगा और जो खोल कर देखेगा उसको भी दिक्कत आएगी। सो यू हैव टू हैव समथिंग विच इज़ वेरी इजीली अपलोडेबल एंड वेरी इजीली, राइट। सो दैट इज। अच्छा, एक और चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर। मैं अपनी माइंड स्टोरी तो मैं बता ही रही हूँ, व्हाई डिड आई कम ऑन सोशल मीडिया, ये भी मैंने बता ही दी, क्योंकि ऑडियंस के साथ, आपके साथ एक लगाव सा शुरू से ही बन गया। नाउ व्हाट हैपेंड इज, कई बार ऐसा मन में सवाल आता है ना कि हम कमाना कब से शुरू करेंगे। पहले 3-4 वीडियो के बाद। हैरानी हो रही है? हाँ, ताली बजा सकते हैं इस पर। पहले 3-4 वीडियो के बाद। बहुत हैरानी हो रही है ना? क्यों? क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं ना जो आप करना चाहते थे। YouTube को सरल भाषा में आपको समझाती हूं, आप ये दुकान आपने खोली है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया? ये एक दुकान खोली है, इस दुकान पे आकर कोई भी देख सकता है कि आप क्या सामान बेचते हैं। आपको कोई डेमो देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप कितने साल से कितना एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे बिजनेस हाउसेज यूट्यूब पर आ रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स यूट्यूब पर आ रहे हैं। क्यों? वेरी सिंपल। आपको कोई डेमो नहीं देना, आप यहाँ पे साक्ष्य दिखा रहे हैं। वो क्या है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो यहाँ पे सामने है जो कुछ है। आप जो एक बार फेक वीडियो बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, बार बार नहीं बनता फेक वीडियो। हर बार आप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी एज नेचुरल एज यू आर। तो जितना आप नेचुरल, बिकॉज आप कैसे हर बार मेकअप करके, कैसे आप हर बार नए नए कपड़े पहन के खड़े होकर, हर बार नया बैकग्राउंड लाकर कैसे बनाएंगे वीडियोस? ये तो आपको लगातार करनी है ना ये चीज। तो इसलिए इसमें सच्चाई आती है और इसीलिए लोग कन्विक्शन के साथ उसके साथ जुड़ते हैं। तो आपको, मैंने इसलिए 3-4 वीडियो बोला, यूट्यूब से आपको 3-4 वीडियो के बाद पैसा नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। आपके अपने काम से आपको पैसा आने लगेगा। इट इज सो इजी। समबडी सेज कि आपकी कोई सर्विस है, आप करते हैं, तो आपको कितना इजी है उसको बताने के लिए। ओके, आई एम सेंडिंग यू अ लिंक, आप देख लो, इसके ऊपर देखकर मुझे कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, आपको चाहिए तो। करेक्ट है? आपको अपने स्कूल के बारे में किसी को बताना है, आपको क्यों बताना कि हम तब से हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। आपने कंसोलिडेटेड वीडियो बनाकर डाल रखा है, ये लीजिए, देख लीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ सबको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल फैक्चुअल है। अब आते हैं डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। क्या है कि जैसे ही आप प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं ना, लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं कि इतने रुपए में इतने लोग, इतने फॉलोअर्स मिल जाएंगे, इतने व्यूज़ मिल जाएंगे। प्लीज डोंट इवन लिसन टू देम, बी ऑर्गेनिक। ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ब्लॉक मतलब बिल्कुल शॉर्ट ब्लॉक हो जाएंगे। कभी मतलब तुक्का चल गया, एक बार तुक्का चल गया, 2 बार, 3 नहीं चलेगा। एंड आपका एनालिटिक्स खराब हो जाएगा। आपकी एनालिटिक्स खराब हुई नहीं कि आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, आपको लगेगा कि कुछ रेशियो प्रोपोर्शन बिगड़ रहा है। शुरुआती तौर पर नॉर्मली एक बिजनेस, आप में से किसी का बिजनेस है क्या यहाँ पर? एनीबडी फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड ओवर हियर? यू हैव अ बिजनेस, ओके। मैम, नॉर्मली जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितना समय देने के लिए बोलते हैं बिजनेस में शुरुआती तौर पर? देखिए, किसी भी चीज को 2 से 3 साल लगेंगे स्टेबल होने के लिए,
राइट। बिजनेस साइकिल में नॉर्मली 2 से 5 साल का साइकिल बोलते हैं, बिकॉज पहले साल आपने आइडिया को, यू इंसेप्टेड द आइडिया, देन यू स्टार्टेड इट, पैसा नहीं है तो, तब की बात कर रही हूँ, पैसा है की बात अलग है, राइट। देन यू स्टार्टेड द आइडिया, फिर आपका वो 3rd ईयर पे जाकर अब वो चला, आपको उसके गुड बैड पता चले, फिर आपने उसमें करेक्शन किया और 5वें साल तक वो स्टेबल हो जाता है। नॉर्मली ये साइकिल 2 से 5 साल की, पर अगर आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, कुछ हो जाता है, बिकॉज मैं पैरेलली कुछ एक बिजनेसेस भी करती हूँ, एंड सो दैट इज व्हाई इट हैपन्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप उसको उतना टाइम दीजिए, आपको उतने साल तक कमिटेड रहना पड़ेगा। क्या होता है कि कई बार 100 वीडियो डालने के बाद आपको लगता है आप बेकार है 101 बार डालना। मैं आपको एक मोहम्मद अली की कहानी सुनाती हूँ। ये एक बॉक्सर, नाम सुना आपने? तो क्या हुआ, मोहम्मद अली बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे थे, और मैं मैच मुझे नहीं पता, मैं तो कहानी में से जो उठाना था मैंने वो उठाया। वो बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे थे, उनका प्रतिद्वंदी भी बहुत ही स्ट्रांग था। उनको ये बताया गया था कि इसको हरा दिया तो तुम्हारा विश्व में नाम हो जाएगा। तो मोहम्मद अली ने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। उन्होंने बॉक्सिंग रिंग में जाकर प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी कई घंटे कि जो उनके कोच ने था उन्होंने कहा द डे इज ओवर, यू कैन गो। वो गिर गए, मतलब प्रैक्टिस करते करते पसीने में लगकर, और कोच चले गए कि अब ठीक है, अब चला ही जाएगा। मोहम्मद अली खड़े हुए और उन्होंने दिमाग में सोचा कि मेरा प्रतिद्वंदी प्रैक्टिस कर रहा होगा, और वो खड़े हुए और अकेले उन्होंने वो जो बॉक्सिंग के लिए टंगा होता है ना, उसके साथ अकेले एक बार और इतनी प्रैक्टिस करी कि वो खुद ही गिर गए नीचे, पसीने में लथपथ। थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हो तो। वो फिर एक बार खड़े हुए, और एक बार खड़े होकर उन्होंने फिर प्रैक्टिस करी, और इस बार वो गिर गए। उन्होंने कहा कि अब तो मेरा प्रतिद्वंदी नहाने चला गया होगा बाथरूम में, वो थक गया होगा, और उन्होंने कहा क्योंकि वो नहा रहा है मैं एक बार और प्रैक्टिस करता हूं। जब तक वो नहा के बाहर निकलता है मैं प्रैक्टिस करता हूं। उन्होंने फिर से एक बार प्रैक्टिस करी, जब तक कि वो थककर बिल्कुल चूर होकर गिर नहीं गए। वो रिंग से बाहर जा रहे थे, रिंग से बाहर जाकर उनको लगा अब तक तो मैंने उसके लिए करी है, एक प्रैक्टिस मेरे अपने लिए। और मोहम्मद अली वापस गए, प्रैक्टिस करी, गिर गए, फिर शायद उनको कोई लेकर गया, रेस्ट करा, एंड देन ही बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन। तो हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 10, 15, 20, 100 वीडियो डालने के बाद क्यों थकेंगे? शुरुआत किस लिए करी थी? क्योंकि हमें कुछ बदलना था, या किसी की मदद करनी थी, या कहीं इंपैक्ट क्रिएट करना था, हाँ या ना? इसकी स्पीड किसने फिक्स करी? हमने, हाँ या ना? तो फिर थकेंगे क्यों? मतलब मेरे को नहीं समझ में आया हम क्यों थकेंगे। डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया में डर लगता है जब आप किसी को देखते हो कि इसके 10 लाख हो गए, राइट, और आपको लगता है कि वो मर्सिडीज में आ रहे हैं, या आपको लगता है और बहुत सारी छल्ले वाली गाड़ियों में आ रहे हैं। अलग अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं हाँ, अलग अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तब आपको डर लगता है, बोले वहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। आपने तय कर लिया अपने लिए मुश्किल, यू हैव फिक्स्ड दैट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। मैंने अभी, मतलब मैंने सुना था अभी किसी से, मैं किसी की बोली हुई बात बोल रही हूँ, ये मेरी बात नहीं है। उसने कहा आज नहीं है कल तो होगा ही ना, आज ही तो नहीं है, तो मैं उसकी बात ही रिपीट कर रही हूँ, ये मेरा सेंटेंस नहीं है। मेरा मानना है कि आज भी है, कल भी है, और परसों भी रहेगा, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, दैट्स इट, राइट। अच्छा, आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, हर बार वीडियो नहीं, हर बार रील नहीं, हर बार शॉर्ट्स नहीं। मैं लिखती भी हूँ, आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर ऑल्सो, मैं लिखती भी हूँ, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको यू शुड हैव दैट इट। एंड मुझे टाइम बताएंगे कितना टाइम है, और ताकि मैं उसी हिसाब से, पार्डन, राइट, थैंक यू गीतिका।
सो अब मैं आपसे जो बात कहती हूँ, ये स्टार्ट क्यों हुआ आई बिग वंडर, ये तो मैंने आपको सारा बताया. ये नाम कहाँ से आया आई बिग वंडर? ये मेरा एक स्कूल था, ये सच्ची कहानी है, आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा. ये मेरा स्कूल था, आई स्टार्टेड अ स्कूल. तो मैंने बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हुए मुझे रोकना पड़ा. सो ये उनमें से एक था. ये मेरा बच्चा है आई बिग वंडर, ये मेरा तीसरा बच्चा है. मैंने 2011 में इसको शुरू किया है. मेरा चैनल पे आप जाके देखेंगे 2013 में, मुझे पता ही नहीं किसी ने कोई डाल दिया होगा. स्कूल के वीडियो नहीं होते छोटे छोटे बच्चों के, वो इट वाज लाइंग डेड. मैंने कभी खोल के खुद नहीं देखा था ये इसको. कोविड में मेरा बेटे, मैं बताया ना, मेरे बेटे ने बोला अच्छा नया नहीं स्टार्ट करना है तो ये बना पड़ा है, इस पर डालना शुरू कर दो. इट स्टार्टेड लाइक दैट. सो आई स्टार्टेड अ स्कूल, आई वॉज रनिंग वेरी सक्सेसफुली, बट इट वॉज इन अ रेंटल प्रमाइस, एंड बिकॉज इट हैड अ मेरी रेकरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी. तो मैंने एक डिसीजन लिया 5 साल सक्सेसफुली रन करने के बाद, दैट टिल द टाइम आई डोंट हैव माई ओन प्लेस आई एम गोइंग टू टेक इट अ हॉल्ट. तो कागजों में ये अभी भी है, और फिर मैंने उसको हॉल्ट लिया. बट यू नो व्हाट हैज हैपेंड इज आफ्टर आई स्टार्टेड ऑन यूट्यूब, नाउ आई हैव एटलीस्ट 3 people, मतलब जिन्होंने मुझे ऑलरेडी अप्रोच कर लिया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, और वो ये कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू डू दैट. तो आपको सोशल मीडिया से आप बहुत दूर तक लोगों तक पहुंचते हो, लोग आपको देखते हैं आपके काम में. बस सच्चाई यही है कि आप कितने सच्चे हो अपने आप से, अपने काम से, और जो आप हेल्प करना चाह रहे हो उस हेल्प में. सो इफ यू आर ऑनेस्ट विद एवरीथिंग, देन एवरीथिंग विल वर्क. सो आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ. मैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, गंभीर विषयों पे बात करती हूँ, ना राजनीति पे बात करती हूँ, ना धर्म पे बात करती हूँ. अभी तक फाइनेंस पे बात नहीं करनी शुरू करी. मैं गंभीर विषयों पे बात करती हूँ, ऐसे गंभीर विषय जो एक छोटे से बच्चे को आप किताब दो तो इससे अच्छी नींद की गोली नहीं है. बच्चे को किताब खोलते ही वो सो जाता है. और आप सोचिए कि मैं उस किताबों के अंदर लिखी हुई चीजें बताती हूँ, वो भी उन लोगों को जो शिक्षक स्कूल में जाकर पढ़कर थक चुके होते हैं. मेरा मोटो क्या है मैं आपको ये बताऊंगी, और आप सब उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, एंड फिर आप सब उसका हिस्सा बन सकते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको. राइट, यूट्यूब पर आप जब जाते हैं तो ऊपर कुछ टैब्स दिखाई देती हैं, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, हाँ ये सारी चीजें दिखाई देती हैं. मुझे वहां पर एक टैब बनाना है अपने एजुकेटर्स के लिए. मुझे वहां टैब बनाना है. राइट, वो फिटनेस और वो जो दिखाई देता है ना, और ये चीज हो सकती है मेरे जैसे ही 1 लाख क्रॉस होंगे, आप सब उसका हिस्सा हो सकते हैं, एवरीबडी. बिकॉज मैं तभी हेल्प कर पाऊंगी ना जब मैं हेल्प करने की स्थिति में हूं. आप देखते हैं ना कि कोलैबोरेशंस होती हैं, यूट्यूब एक दूसरे को, फाइनेंस वालों को हेल्प करते हैं. कैसे उन्होंने वो टैब बना दिया ऊपर. मेरा टैब बनेगा, बनने ही वाला है, क्योंकि यूट्यूब एक के बाद एक चीजें खोल रहा है मेरे लिए. उसको मेरा ऑनेस्टी, मेरा कमिटमेंट दिखाई देता है. उसको मौज जैसा प्लेटफॉर्म खोल रहा है, लिंक्डइन मेरे लिए प्लेटफॉर्म्स खोल रहा है एक के बाद. जैसे कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, ये कर लो. राइट, बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट. वापस रिपीट करके, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज, एंड देन वील हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स. आपके मन में जो सवाल होंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट. आई वांटेड टू हेल्प द चाइल्ड ऑफ माय नेशन थ्रू द टीचर. सेकेंड, आई न्यू कि मेरे को पढ़ना आता है, मैं किताब खोल के पढ़ सकती हूँ. बहुत सारे लोग किताब नहीं पढ़ सकते, तो मैं उसको 360 पेज की किताब को 10 मिनट में तब्दील कर देती हूँ. एज सिंपल एज दैट, ताकि सरल से सरल भाषा में समझ में आए. लोगों ने मुझे कहा, मेरे साउथ में फ्रेंड्स हैं, दे आर डैगर्स एट मी, कि चक्कू मार देंगे तो इंग्लिश में नहीं बोलती है. मैंने बोला मैं हिंदी में इसलिए बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी मातृभाषा है और मैं कनेक्ट होती हूँ लोगों से. ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है. आई एम नॉट देयर टू प्रूव दैट आई नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, आई एम देयर टू हेल्प. एज सिंपल एज दैट. और तीसरी और आखिरी चीज, नाम और पैसा चाहिए, पर आपने जो कहा था, यहाँ पर जो बैठे, यस, आपने जो कहा था कि जहां पर सरस्वती जी होंगी वहां लक्ष्मी जी आ जाएंगी. ध्येय यही है. दैट इज इट. लक्ष्मी माँ वापस. Okay, so with this, thank you very much for patiently listening me. I'm all open to your questions. After, yeah, just a second. And ये जो लिखा है ना, everyone has a right to say I beg. आप सबके अंदर एक बहुत बड़ा वंडर छुपा हुआ है. आंख बंद कर, जोर से मत बोलिएगा, आंख बंद कर अंदर एक बार बोलिएगा I beg wonder. बोलिए.
कहाँ बोला, ऐसे ऐसे सिर हिलाया। बोलिए सब लोग, आंख बंद करिए, एवरीबडी क्लोज योर आइज, आंख अंदर अंदर बोलिए, गहरी लंबी सांस लेके, अपने आप के लिए, मेरे लिए थोड़ी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sapna ma'am. And after listening to so many words over the last 1 hour, I think I can only be speechless. इनके आगे तो अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते। आई बिग वंडर तो दूर, आपने जो इतने सारे मोहम्मद अली खड़े कर दिए जो सोचेंगे कि मेरा प्रतिद्वंदी अभी प्रैक्टिस कर रहा होगा और फिर उठेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। आई एम श्योर द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट योर टॉक हैज़ brought about in people, and the kind of, and especially people who really want to do something, who have the need, want, desire, and don't know how. So thank you so much. I think this was one of the most powerful sessions of all times. The fact that it was, straight from the heart. And like she kept saying, I'm very honest, and that is probably the key to her success, that it's all about manifestation. Agar kisi bhi cheez ko we've all read the book Secret, and anything that you want so much, and if you work towards it, the universe also helps you, like LinkedIn is helping her, and like a lot of us will be connected with her and help her through it in the journey, helping ourselves. The house is open for questions. I'll be able to take them one by one, so raise your hands if you do have a question. Ji. I think you use them. Because others can. Yeah, as you said, ma'am, you want that educator tab should be shown. So technically, how that will help, Okay, yeah. That's a great question. मतलब आपको उसमें point में दम दिखा, इसका मतलब आपको point में दम दिखाना, sir. That is it. So what happens is, जब वो ऊपर tab आता है ना, इसका मतलब उस तरह के उस particular domain के कम से कम 25 creators हो गए हैं। 25 क्रिएटर चाहिए जो लगातार डेडिकेटेडली उस तरह के कंटेंट डाल रहे हों। अगर वो कंटेंट लगता है और यूट्यूब को या जो भी प्लेटफॉर्म है उसको लगता है, वो टैब क्रिएट करता है। ये मैंने पूरा स्टडी रिसर्च करने के बाद ही बोल रही हूँ। उससे क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब आपको फाइनेंस दिखाई देता है हर एक को, कहाँ लाइफस्टाइल दिखाई देता है, आपको हेल्थ दिखाई देता है। तो इसका मतलब आपको लगता है कि ये वो एरियाज हैं जो बिक रहे हैं। सो द मोमेंट इट इज एजुकेटर्स ओवर देयर, The moment the tab is like that, या जो भी वो नाम वो आइडेंटिफाई करके वो सबको पूछेंगे, this is the name what we want to put over there, is it okay? वो ऐसा लेते हैं, हमसे लगातार सर्वे करते हैं, जो डेडिकेटेड कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे वो सर्वेज कराते रहते हैं। अगर आप में से कोई है तो आपके पास भी वो सर्वेज आते होंगे, एंड दे कीप आस्किंग। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आप सोचिए केवल 25 लोग चाहिए, केवल 25 लोग डेडिकेटेड लगातार ये काम करने के लिए चाहिए। 26वां तो अपने आप ही आ जाएगा, फिर तो कोई। सो दैट इज अ फायदा सर, और सबका फायदा होगा उसमें। नाउ वी अभी फाइनेंस के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कितने लोग बुलाते हैं, आज यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज दुबई में हो रही है, राइट, स्टॉक मार्केट से जो है, करेक्ट, स्टॉक मार्केट से जो, उनको कितने लोग बुलाते हैं। तो एजुकेटर्स टैब आने से आपको यहाँ पर आज मेरे जानने में अर्चना मैम बैठे हुए हैं, रेनू मैम बैठे हुए हैं, दे आर ग्रेट एजुकेटर्स। सो जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड डज नॉट नो, आई मीन, सो आप ये सोचिए कि मैम जैसे ही वो टैब बन जाता है ना, इट इज, आई डोंट गो अलोन, ये हम सब जाने वाले हैं वहां पर, एवरीवन। वो टैब बनने की देर है, मुझे वो टैब बनाना है। सो इसलिए मैं लगी रहूंगी तब तक, मेरे एजुकेटर्स के लिए मुझे बनाना है वो। सो दैट इज इट। That's a wow thought, ma'am. I big wonder. Keep saying I big wonder, and I'm sure the wonderful things will happen. Any questions here this side? No questions? जी जी। Yeah, actually, ma'am, we all are almost teachers, and we are teaching, as you have said that you have been teaching. So after, after school hours, we all are really tired. And in that you have said that we need dedication. मैंने बोला मैं थके हुए टीचर्स को ज्ञान देती हूँ, मैंने बोला था। जो मतलब स्कूल में खड़े होकर पढ़ाते, कुर्सी भी तो हम क्लासेस से हटवा देते हैं ना एज प्रिंसिपल्स, हम कहते हैं टीचर खड़े होकर पढ़ाएंगे, बच्चा बैठेगा, हम ये करते हैं, हम तो ये सारे बुरे काम करते ही हैं, राइट। और मैं उन थके हुए टीचर्स को ये पढ़ाती हूँ फॉर द सिंपल रीजन, बिकॉज आई नो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय पे गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ गुरु थे, अब वो शिक्षक को बिल्कुल मतलब आई डोंट नो वेयर दे हैव टेकन, आई डोंट वांट टू से बिकॉज माय टीचर्स आर वेरी पावरफुल,
वो आज भी उन्हीं टीचर से पढ़कर ही तो बच्चे कुछ ना कुछ बन रहे हैं ना। मैं भी तो किसी टीचर की पढ़ाई हुई हूँ ना, तभी तो कुछ बनी हूँ ना आज, ऐसे तो नहीं बनी ना। तो द टीचर हैज़ टू बी एम्पावर्ड, सो दिस इज़ माई वे ऑफ एम्पावरिंग। एंड कितने भी थके क्यों ना हो सर टीचर्स, कोविड में टीचर्स ने दिखा दिया ना, नाड़े से मोबाइल लटका लटका के पढ़ाया है। मैं आपको सच्ची घटना बताती हूँ। मेरी एक टीचर ने मुझसे कहा, सच्ची घटना है, हमने बोला वीडियो बनाकर दो, तुम बच्चों को वीडियो पढ़ाना है, दिस इज अ फैक्ट, यू ऑल विल, मतलब आप इतना हंसोगे कि आप भूल ही नहीं सकते, आप इतना हंसोगे। वो बोले मैम मेरा ना घर बहुत छोटा है। तो मैंने बोला तू छोटे घर से वीडियो में क्या फ़र्क पड़ रहा है, मोबाइल के आगे बैठ बेटा और बना मोबाइल। शी सेज मैम रात को बनाती हूँ कुत्ते भौंकते हैं, दिन में बनाती हूँ सब्जी वाला तो कद्दू ले लो आलू ले लो करके आता है, बाथरूम में जाके बनाती हूँ आवाज़ गूंजती है, अंदर बनाती हूँ लोग बोलते तुम्हारे को और कोई काम नहीं है क्या, तुम वीडियो बनाते रहते हो। मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई, मतलब टीचर्स ने फिर भी बच्चों को वीडियो बना कर दिए हैं स्कूल लेवल पे, ये तो आप सब मानेंगे ना। और ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, हर टीचर के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अगर टीचर ने उस प्रॉब्लम घड़ी में समय निकाल दिया और बच्चे को फिर भी पढ़ाया है, मैं उस 80% टीचर का बोल रही हूँ जो सच में पढ़ाना चाहते थे, मैं उन 20% की बात नहीं कर रही हूँ जो कोई बदलाव ले लाना चाहते, सिर्फ तनख्वाह चाहते हैं। फैक्ट ये भी है, मैं उन 80% की बात कर रही हूँ जो बदलेंगे और बदल रहे हैं हर समय। तो पॉसिबल है सर, इट्स लाइक दैट। Maybe 6 to 7 hours in a school where your energy is spent towards teaching the children, and when you come back home and there's home to look into, there's family to look into, as well as prepping for the next day, as well as correction. So where is the time and the energy and the mind space for that person to... I get your point. I get your point. And you know why Gitika ji is saying that? Because she herself is in the field of education. She is heading a school in Delhi, and she's herself over there. मैंने बोला कि इसकी स्पीड कौन फिक्स करेगा? आप महीने में एक दिन, 15 दिन में एक बार, जो आपको स्पीड फिक्स करनी है, जितना टाइम मिलता है वो स्पीड आप फिक्स कर लीजिए। कोई जल्दी थोड़ी है इसके अंदर कि रोज ही डालना है, रोज हमको रोज ही डालेंगे तभी फायदा होगा, कुछ भी नहीं है। आपका एनालिटिक्स है, आप बनाओ उसको, जब आपको लगे समय मिलने लगा है, इसका रिटर्न मिलने लगा है, वो तो होता ही है ना, जहाँ से हमें मिलता है हम वहाँ पे और एफर्ट लगाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट्स योर एफर्ट, यू हैव टू डिसाइड। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको हफ्ते भर में, महीना भर में एक बार टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा। So I think that is the only commitment. Fair enough. That answers the query, that the frequency is yours, and then you do have some spare days to yourself. So this is something you do for yourself. So the next, any other questions here, ma'am? Hello, Sapna. It's great. It was really a great session. And of course, I've heard you before also. It's always been lovely listening to you. I'm Archana Mankotia. I'm principal of MGT Girls School here in Jaipur. So, Sapna, it's not a question. It's just a thought. Because as you said, first of all, I'm quite surprised that जो आप टैब की बात कर रहे हैं YouTube पे, I was not aware of that, and you're saying 25. Is this actually 25? That's you can that search means it. we don't even have 25 dedicated ऐसा ज्ञान देने वाले. So I'm quite Very surprised. honest, yeah. I'm quite surprised at that number. Secondly, it's just a little thought process, because teachers generally we come from that kind of a background, a middle where class we are background. no, and also we are generally we prefer to be in the background. So it's not like, social media, when you think of social media, it's like आगे सामने दिखाने वाला, और so हमें लगता है हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, हम खुद पीछे रहते हैं. तो social media पे आना, like apart from the fact that we are tired at the end of the day and all that, the thought, जो perception है कि I don't want to be there out there for everyone. I want to be there for my children. Profound question she has asked. So I mean, and that has to come from Archana, ma'am. Thank you so much. Yeah. So it's just, I think most of us from that generation, we are not into the social media because we associate social media to a certain kind of ostentation. Correct. Or presenting yourself out there to the world. Yeah. So I guess that probably needs to change, as you said, and we need to go out there and help our co-educators. I think ये सवाल अगर नहीं आता ना आज, तो शायद ये वर्कशॉप अधूरी रह जाती.
तो पहले तो अर्चना मैम के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां. You know, she is again one woman, I think many people love her, but I love her for a variety of reasons. As she said, she's heading MGD over here, a very, very down-to-earth person, ever since I met you. अब मैम ने जो बात करी ना, अर्चना मैम ने, देखिए हम हिंदुस्तानी ना, हम वो हैं, मैम थोड़ी सा पीछे जाऊंगी आपकी बात से, हम वो लोग हैं जो हम पढ़ लिख कर, एक माँ घर में इसलिए रहती है कि उसके बच्चे अच्छा कुछ कर जाएं, हाँ या ना? हम केवल पुरुष को या घर में से किसी एक को कहते हैं कि तुम कमाओ, हम बच्चों के साथ रहेंगे, मेरा कुछ नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं. और इमेजिन करिए कि हम कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ सोशल मीडिया पर आ जाओ. जस्ट इमेजिन द क्वेश्चन विच शी सेज कि जहाँ पर आपको सामने आना पड़ेगा. हम तो पीछे, इतना पीछे रहने वाले हैं. कब आज से कुछ साल पहले शायद, या आज भी मुझसे कोई पूछेगी कि एक घर में, एक गांव में, एक आप इमेजिन करके देखिएगा कि एक गांव है जहाँ पर एक बूढ़ी माँ है जो, अब तो खैर गैस आ गई हैं काफ़ी सारी, पर फिर भी वो एक चूल्हे में जला रही है, तवे पे घी डालकर बच्चे को खाने के लिए रोटी परोस रही है. मेरे से कोई और एक मैं या गीतिका या अर्चना मैम, हम सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल वुमन है? किसको कहेंगे? उठाना बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि हम घर के पुरुष समाज को, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से बाहर लड़कर निकले, अपने आप को इस्टेब्लिश किया. हमने कुछ कम काम, ऐसा नहीं है कि हमारे को अचानक से किसी ने परोस कर दे दिया, राइट है? सो हम लोगों ने भी लड़कर मेहनत करके लिया है. पर क्या वो माँ जिसने सब कुछ, जिसने सोचा ही नहीं कभी, right? Now that is the question where it comes from. So now social media does not always mean आप बहुत सारे, जब आप कंज्यूम करेंगे तो आप बहुत सारे वीडियोस, चैनल्स आप ऐसे देखेंगे वो फेस लाते ही नहीं है कभी अपना, right? It's only the content which they try to project. You can still be behind. आप फिर भी पर्दे के पीछे रह सकते हैं, आप चेहरा न लाएं, आवाज ले आएं अपनी, right? And there are people, I'll give you one further step. There are people, उन्होंने इसको मैनेज किया. उसने कहा चैनल मेरा, 10 लोगों से उन्होंने कहा कि आप कंटेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू करो. 10 लोगों की चॉइस थी कि वो फेस लाएं या फेस ना लेकर आएं, और वो केवल मैनेजमेंट कर रहे थे उसका, और वो भी ग्रो हुए अपने साथ साथ. वो अकेले बढ़े ही नहीं, उन्होंने 10, वो 11 के साथ ही बढ़े, वो क्रिकेट टीम बनाकर ही बढ़े आगे, राइट? सो एंड द पर्सन नेवर ब्रिंग्स द फेस, वो अपना फेस कभी आगे लेकर ही नहीं आते हैं, राइट? सो यस, देयर इज अ चैलेंज, बट ज़माना बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं. देखिए सोशल मीडिया इसलिए अब ज़्यादा बात होने लगी है क्योंकि सिद्धार्थ जी मीडिया से ही बैठे हुए हैं. आज से पहले, और मतलब आज आप में से ऑडियंस में ना जो बहुत सारे लोग आए हैं, वो मतलब इतना मान बढ़ा रहे हैं आने से, जैसे आप लोग सबके आने से ना, एक्चुअली आई कांट टेल हाउ ओवरवेल्म्ड आई एम, राइट? सो आई एम पर्सनली ओवरवेल्म्ड एंड पर्सनली थैंकफुल. सो अभी यहाँ पर वो शायद गए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा आवा का हमारा देखकर. एक मेरे जानने वाले हैं प्रेम भैया, उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ. सो यू नो व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज, सोशल मीडिया अगर ना होती तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें जैसी मिलनी चाहिए थी, हमें वैसे ना मिलती, राइट? दैट इज वाई इट इज अ पावरफुल टूल, क्योंकि इसमें कंटेंट की कोई वो है ही नहीं, जिसको जो मर्जी कंटेंट बना. एंड दिस इज अ वेरी थिंग, जो लोग यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो NEP की पढ़ाई कर रहे हो जो मैं सिखा रही हूँ, या कोई और, बहुत डिसिप्लिन चाहिए यूट्यूब से पढ़ने के लिए. आसान नहीं है पढ़ना, आपको इतने डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आता है, उसको आपको क्लोज करना पड़ता है. तो जो लोग पढ़ रहे हैं ना, जो कंज्यूम कर रहे हैं, मैं भी कंज्यूम करती हूँ, उनका डेडिकेशन है कंज्यूम करना भी, राइट? सो इट्स नॉट ईजी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हमने ये स्टार्ट किया फिर उसको निकाल कर इधर चले गए. हम जो देखते हैं वो रेगुलरली देखते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, उससे सीखते हैं. वी हैव एन एबिलिटी टू फिल्टर राइट एंड रॉन्ग, राइट? यूट्यूब के कुछ एक फायदे आपको बताती हूँ. आपको वैसे कोई वीडियो भेजेगा, आपके मोबाइल की मेमोरी ब्लॉक होगी, यूट्यूब का लिंक 1000 भेज दें, फर्क ही नहीं पड़ रहा मोबाइल पर, कोई मेमोरी ब्लॉक नहीं हो रही. जिस दिन आपको खोलना है खोल लो, नहीं खोलना मत खोलो, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? यू डोंट गेट चोक्ड एट ऑल, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इट इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग. आपको लगता है ये लिंक मेरे पास अभी आया, रात को 12 बजे अकेले ईयरफोन लगाकर तब सुनूंगा या सुनूंगी, सेल्फ पेस्ड लर्निंग. सो इट्स अ सेल्फ पेस्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज वाई. सो आई थिंक
आपने सही बोला, बस ज़माना बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है, सरल तरीका है, खर्चा नहीं लगता इसके अंदर। Thank you, ma'am. Any other questions here? तो आप स्टार्ट करोगे ना? पूछ लूँ पहले, अगर थैंक यू करे तो स्टार्ट करोगे ना? I've been a teacher, being Army officer's wife, and being teaching since last 22 years. Yeah. And I was the principal of Asher School. And I motivated my niece to do something, and she started her own channel. And she requested me ki you come up with some videos, and I made many videos for her on YouTube just to help her. And people, somehow my sons, they are both software engineers, they said, Ma, you did an excellent job. They themselves are in Google. So they motivated me the way you said your son motivated you. But I am like, no, I'm not a limelight hogger. Yeah, I want to do, and I'm taking Gita classes also. So Nishkam, Karma, and things of that kind. So I've been teaching children of my society, helpers, and everyone. So I used to take it, no, not meant for me, not my cup of tea. And I want to do something for the society without having that. But now you change my perception. Thank you. You can start on LinkedIn. आप लोगों को बताएं, उसमें ना चेहरा आता है, ना आवाज आती है. नहीं, I don't mind चेहरा जैसा भी है. तो mirror, mirror on the wall. Who's the fairest amongst us all? It's me. You, my lady. It's me. And my videos are already there on YouTube channel. Right. But I was reluctant all the time. So now I'm highly motivated. Yes. So thank you so much. You know, LinkedIn is one platform where in a subtle way you can write articles and you can just tell people that this is what you are doing. And a lot of professional minds observe you. And you get directly and indirectly a lot of work. आपको LinkedIn से बहुत work मिलेगा. जी सर. जैसा सपना मैम ने बताया कि मैं मीडिया से हूँ और मैं सिद्धार्थ भट्ट रासन पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ. सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, पिछले 3-4 साल में मैं मीडिया की बात करूँगा क्योंकि मैं मीडिया से हूँ. आप देखिए कि बहुत से लोग जो बहुत बड़े अंग्रेजी के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और सोशल मीडिया पे आ गए. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोले और अपने न्यूज़ सेक्शन में न्यूज़ दे रहे हैं. और अब तो उन्होंने न्यूज़ के बाद भी लोगों से मिलना, लोगों का इंटरेक्शन कराना, लोगों से डिबेट कराना, जैसा आप टीवी चैनल्स में डिबेट देखते हैं लाइव, कई हल्ला बोल, दंगल या जो भी किसी भी चैनल में देखते हैं. और आप सब्सक्राइब की जहाँ तक बात है, मतलब अभी एक अजीत अंजुम है, इंडियन एक्सप्रेस के बड़े एडिटर हैं वो, और अभी 12 लाख उनको लोगों ने क्रॉस कर दिया, 12 लाख सब्सक्राइब ने. और गोल्डन बूट से भी आगे क्या होता है? सिद्धार्थ सर, सबसे पूछिए तो उन्होंने आई बिग वंडर सब्सक्राइब कर लिया क्या? किसको? सबसे यहाँ पर पूछिए तो इन्होंने आई बिग वंडर सब्सक्राइब कर लिया क्या? हैव यू सब्सक्राइब आई बिग वंडर? किया किसने? देखो 2 लोग हैं. आप ये देखिए कि अब जो नए परिप्रेक्ष्य में नए उसमें आ रहा है, क्योंकि मैं बस में चल रहा हूँ, ट्रेन में चल रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, उसका जो यूट्यूब का जो उसका वो जो पूरा 1 घंटे का जो उसने सेशन दिया उसको शॉर्टकट में ला देता है उसके अंदर. और आप इन्फ्लुएंसर की बात करें, अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी जो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी जो अभी बात आ रही है कि कैसे, जबकि पिछली बार अमेरिका में यूएस जैसे बड़े शहर, मतलब बड़े सिटी में या बड़े उसमें क्या बोलें, इस देश में भी ये कहा गया कि साहब रशिया ने इन्फ्लुएंसर कर दिया हमारे लोगों को और हमारा चुनाव में कुछ हुआ. ये सोशल मीडिया की ताकत है. अभी आप जानते हो कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कितना सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, किस तरह से करते हैं. और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. मैं एक देश के बहुत बड़े नेता 2007 के अंदर मैं नाम नहीं लूँगा, 2007 में राजस्थान में आए थे और राजस्थान की सरकार की बिल्कुल चीफ, जिसको कहें मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट का चीफ, उनसे उनकी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि मीडिया मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा. तो उनका एक ही शब्द, आप मीडिया को भूल जाओ, आप सोशल मीडिया पे आ जाओ, अपनी बात सोशल मीडिया से रखो और यही आपको आ जाएगा. आज जो हम देख रहे हैं मोदी जी को किस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया. और अब इसके बाद एक नई और बात बताऊँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप पार्टी को जो देखते हैं, ये सब सोशल मीडिया का कमाल है, वो किस तरह से बूस्टअप हो रहे हैं. तो ताकत सोशल मीडिया की क्या है ये तो आप सब जानते हैं. किस तरह से हमारा माइंड जो है, जिसको आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं, या जो पहले हम कहते थे कि ये हमारे गुरु हैं जो हमारा दिमाग बदल देते हैं, इन्फ्लुएंसर किस तरह से. संदीप माहेश्वरी का तो आपने नाम सुना ही होगा मैम, क्या ज़बरदस्त चीज़ करता है वो. तो ये बहुत बड़ी ताकत है और इससे अब तो पूरा देश, दुनिया, बच्चे सब जुड़ रहे हैं. हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच. राइट, तो ये Thank you so सवाल जो much. सिद्धार्थ जी के थ्रू मैं आप सबसे पहुंचवा रही थी, इट विल बी रियली नाइस. It is important for all of us to subscribe each other. Right, so do subscribe I Big Wonder, that is it. Yeah. Any other questions? You have one. Renu ma'am, yes please. Thank you. I'm fortunate that I'm here today, Sapna, to hear you. I had heard her long back, maybe 2005. मैम आप ऐसे नहीं बोलो, रोज तो YouTube पे आती हूँ. I know, अब तो सब रोज हम familiar हैं, but मैं teachers के बारे में share करना चाहूँगी. Teachers don't want to grow. As सपना मैम का भी मिशन है कि मेरे देश के शिक्षक को बहुत empowered होना चाहिए, and I am also same footsteps of hers. And अभी मैंने symposium किया था in August 29th, and I had invited teachers, and they had come. We gave fellowship to the 3 teachers. 3 टीचर्स को हमने फेलोशिप दिया, आप काम करिए और आपका जो रिसर्च वर्क होगा, स्टडी वर्क होगा, उसको हम पब्लिश करवाएंगे किसी जर्नल में. एंड you won't believe I'm the only one in Rajasthan whose paper has been published in an international journal. That was in 2006. उसके बाद आज तक राजस्थान में कोई टीचर मैम नहीं. नेक्स्ट आई एम, ये मुझे आपने आज ही बताया, देखो छुपा के रखा था, आज आप सबके बहाने मैम ने बोल दिया. मैम नेक्स्ट आई एम देयर विद यू, और अर्चना मैम को तो साथ ले ही लेंगे. तो उनमें से अभी वो चल रहा था, अभी हम लोगों को इसका कॉन्फ्रेंस करना है, तो आई कॉन्टैक्टेड दोस 3 टीचर्स कि आपने कितना स्टडी करा. उनके पास में एक्सक्यूजेस थे, स्कूल में बहुत काम है, व्हाट्सएप में मैसेज दिखा सकती हूँ. एंड वन सेड नॉट यट, अभी शुरू ही नहीं करा है, जबकि कॉन्फ्रेंस जनवरी में होने वाली है. एंड घर में बच्चों को संभालना पड़ता है, स्कूल वाले अलाउ नहीं करते. दिस आई कांट बिलीव, बिकॉज मैंने भी वो सिचुएशंस में से निकली हुई हूँ. फैमिली भी थी, स्कूल का काम भी था, बर्डन भी था, पर मैं रात को 2-2 बजे तक काम करती थी. So we need to burn the midnight oil and be ready teachers. हम लोगों को बहुत कुछ करना है. We need to imbibe values, build character, build nation. And if we'll not enrich our knowledge, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So हमारे साथ जुड़िए, प्लीज कुछ करिए. 25 उनका जो टैब बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम लोगों को कुछ करना है. आई एम देयर सपना विद यू. That's great Renu ma'am, I'm so happy. There was a hand. Thank you so much, Renu ma'am. There was a hand here. Thank you so much. First of all, my name is Shikha. मेरा सवाल जो है, आई डोंट नो हाउ रेलिवेंट इट वुड बी आस्किंग नाउ, बिकॉज अभी टीचिंग के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन फोकस हो रही है. बट हमने जब बात की कि सोशल मीडिया पर मतलब जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, माई क्वेश्चन हियर इज़ कि यूट्यूब एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज़ फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन फॉर दैट मैटर. मतलब इतनी ज़्यादा है कि उसे चूज़ करना भी बहुत डिफिकल्ट है. When as a person I think I should start with my YouTube channel and this should be the content, what can keep me motivated, you know, कि इतना सब already है, मेरी कौन सुनेगा, या मेरा relevance क्या है वहाँ पर. You know? Great question. ये पता है इसका आंसर तो इतना easy है. Okay, हंसना मना है उत्तर पे. Please. Population कितनी है दुनिया की? फिर भी हर सेकंड बच्चा पैदा हो रहा है, और उनमें से कोई बच्चा अपनी जगह बनाता है. हाँ या ना? मैंने डिस्क्लेम पहले कहा था हंसना मना है. राइट. व्हाई आर वी स्कैर्ड? होने दो ना, इतने सारे लोग हैं. हमको क्या मालूम कौन कितनी चल के उसकी बैटरी कहाँ खत्म हो जाएगी. हमारे को अपनी बत्ती जला के रखनी है. सिंपल. सो इफ यू हैव दैट पावर इन यू, आपको लगता है कि आपकी बत्ती जली रहेगी, जला के रखो. एंड पता है मैं तो एक और चीज़ के लिए बना रही हूँ, मेरी इस दुनिया से जाने के बाद मैं अमर रहूंगी. थैंक यू. माई हस्बैंड इज हियर, उसको मेरी बात अगर ना सुनने अच्छे लगे, उसको फिर भी सुननी पड़ेगी. Okay, that is it. Yeah. Right. I think that brings us to the end of the session, or we have one more. All right. Have some motivation. कोई तो चीज़ होगी ना जो motivated रखेगी. That's it. Ma'am, I just want to know how you manage the SEO of your channel before it monetized. Don't worry. We don't. अगर इतना सोच के हम काम करेंगे ना, तो हम काम नहीं कर सकते. So that means we don't need any kind of SEO मैं तो for our channel. पहला वीडियो डाला, एक भी सब्सक्राइबर नहीं. 5 वीडियो तक तो कोई था ही नहीं. अपने सगे तो देखते ही नहीं.
Exactly. और मैं सच बोल रही हूँ, सिद्धार्थ सर को पर्सनली भेजा था, 11वें वीडियो के बाद पहला वीडियो देखा है. Is it true? तो फिर पता चलता है कि हम डाल किसके लिए रहे हैं भाई. अपने ही एक और ईमेल बनाई, उससे सब्सक्राइबर पहला किया खुद. Right. हाँ, and then फिर अपने बच्चे, अपना जिस पे जोर चलता था, जिसके वो थे, उसको जबरदस्त. तो 8-10 जिसके सब्सक्राइबर चल रहे हैं ना, आपको मालूम है ये कौन कौन है. फिर आपके कुछ लोग होते हैं कि जैसे चलते चलते मेरे को अर्चना मैम के पास गए, मैम मोबाइल देना, सब्सक्राइब. 15वां 16वां वो होता है. राइट. फिर उसके पीपल चढ़ते सूरज को ही तो सलाम करते हैं, तो वो कोई क्या फर्क पड़ता है. वो द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड. सो इट इज समथिंग लाइक आई फेल्ट आई एम हेल्पिंग पीपल, राइट. एंड आई फेल्ट दैट पीपल में भी खास मैंने अपना सेगमेंट क्लियर किया था. एंड आई फील कि मैं कुछ दिनों बाद लगा लोगों को, कुछ खास ऐसे लोगों को मुझे मालूम था, उन्होंने बाद में खुद बताया, जिनको लगा ये इतने डाल रही है, 11-12 वीडियो डाल चुके, देखें तो क्या है ना. एंड मैं भी निर्लज्ज होकर उनको भेजती रहती थी हर बार, जब तक कि वो मुझे ब्लॉक ना कर दें. वैसे ब्लॉक कोई नहीं करेगा क्योंकि यूट्यूब लिंक पर ऐसी कोई बात नहीं है. एंड देन द पीपल स्टार्टेड वॉचिंग एंड देन पीपल स्टार्टेड शेयरिंग. और जैसे रेनू मैम ने बोला, अर्चना मैम ने बताया, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टीचर्स के ग्रुप्स में शेयर किया, बिकॉज दे फेल्ट कि ये कितना सिंप्लीफाइड होके आ रहा है. एंड यहाँ पर मिसेस जैन इज ओवर देयर, संजिता जैन. आई रियली वांट टू थैंक यू, right, you and Aradhana, because she is the one who brought me over here today, right. Her husband, Brigadier Jan, and thank you so much for. And we have to please clap for her from my side. तो ये प्लेटफॉर्म इस तरह से लोग, मतलब वो है ना, हम चलते चले गए, काफिला जुड़ता चला गया, बस वो जुड़ेगा, वो परेशान नहीं होना है. और ये तय है कि पहले 10 सब्सक्राइबर्स हम में सबको मालूम है वो कौन कौन है. मैम ने बताया वो मेड का भी उन्होंने कराया, ये आपने मुझे अभी बताया. तो मेरे सब्सक्राइब चैनल पे अगला, अब घर जाते ही गीता, उसका नाम गीता है, दे मोबाइल. आई फॉरगॉट, ये तो मेरे टिंग टिंग बजा ही नहीं. ये तो मेरे टिंग टिंग बजा ही नहीं ना. और आपने तो और बहुत चीज बताई, फिर तो ड्राइवर भी है. तो अभी अगले 4-5 सब्सक्राइबर्स तो ये फिक्स हो गए. दिस इज ऑन द लाइटर साइड. बट डू नॉट वरी, पीपल विल. आप जब सस्टेन्ड रहते हो ना, तो यूट्यूब भी दिखाता है होम पेज पे, अपने आप दिखाता है यूट्यूब होम पेज पे. और जब लोगों को सही लगेगा, आप उसकी टाइटल कैसे करते हो, आप उसका थंबनेल कैसे बनाते हो, राइट. आप जो आपने एनालिटिक्स बनाई है महीने में, वो आप कैसे करते हो, उससे फ़र्क पड़ता है. यूट्यूब ऑल्सो सपोर्ट्स, उन्हें भी अच्छे लोग चाहिए. So that is it. That's the one thing you have to take back as a mental note is her honesty. And the way she guides you through the process, and the way she has, I mean, literally demystified this, entire truth behind how her success story has unfolded. So, honesty is the best policy. I think she said it 100 times over, and she has proved it to us. And like she thanks Sanjita Jain for having her over, for that she got the forum, I think the forum also got her. So on that note, we must give her a very, very big hand. And it is the forum's fortune also to hear you, ma'am. So thank you so much for being here. And enjoy the rest of the Abhivyakti. और मैं बिल्कुल खाली हूँ, 2-4 जगह खरीदूंगी. आप में से जो भी कोई पर्सनल कनेक्ट होना चाहे, प्लीज फील फ्री. राइट, मैं बिल्कुल यहाँ पर अभी सिद्धार्थ जी के साथ, सबके साथ. अब आप कुछ भी करो, 50-60 लाइक तो हम हो गए. हाँ, मैंने पूछा, देखिए, मैंने निवेदन किया है. नमस्कार, मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ. जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो जी सर, ये केवल याद क्या होता है सर, हम ना अच्छी चीज देख के चले जाते हैं, जब तक वो कोई ये नहीं बोलता कि आइए खरीद भी सकते हैं. तो ये सारे यूट्यूबर्स इसलिए करते हैं कि अगर हम सब्सक्राइब नहीं कर, देखिए, इट इज समथिंग लाइक, अगर आप देख के, तो ये यूट्यूब ही बंद हो जाएगा. सब्सक्राइबर्स आर रिक्वायर्ड, एंड वो टैब बनाना है.
वो टैब तो तभी बनेगा ना जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और मैं कैसे किसी को एम्पावर करूँगी? अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पहुँची हूँ, मैं यहाँ पर पहुँचूँगी, कोई यहाँ पर आएगा, मैं उसको तभी तो खींच पाऊँगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी किसी ने खींचा ही है। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। हाँ सर, वो मैंने बताया, वो नहीं जाना, वो बिल्कुल नहीं जाना, ना ना ना, उनसे तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक कान पे पकड़े, ना सब्सक्राइब एजेंसी पे जाना है, ना किसी वो तो बहुत रॉन्ग है सर। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है ये, हाँ इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा है ये, राइट, ये नहीं जाना है सर। पैसा भी लगाएंगे और कभी भी ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं, राइट जी। All right, so thank you so much, ma'am, and we will move on. Thank you once again, everybody. Okay, we take a 5-minute break and we move on to the part 2 of this, which is blogger Miss Sonia Handa. Is she here? You are here. So if some people want to